Hello students, good morning. So in this last class I have completed unit 2 of on examinations. So today I will discuss the question answers. Let's start question number 1. First question number 1 आरंभ करिया पूर्व तार विषय टिके मने पकाओ जे को विषय रे थिला सेटा ना मिस्टर समन भाई को विषय रे एज ए टीचर इंग्लिश केमती इंपोर्टेंस थिला राइट. Then start question number 1. What kind of students were taught Latin and Greek at Harrow? Question number 1. What kind of students were taught Latin and Greek at Harrow. को टाइप रो स्टूडेंट माने शिखुतले ग्रीक जो लाटिन और ग्रीक ना जो माने फास्ट लर्न होतले क्लेवरर बॉय जोटा भी तुमे जो वर्ड भी यूज करि परिबो आंसर at Harrow the fast learners or cleverer boys जोटा भी लिख परिबो the fast learners were taught Latin and Greek. Here the question is what kind of students were taught Latin and Greek at Harrow? At Harrow the fast learners were taught Latin and Greek. Now we will explain the clever students or fast learners were taught Latin and Greek at Harrow. आउ तो तुम पैसेज रे डायरेक्ट अछि एटा नले एमति लिख परिबो Latin and Greek and splendid things भी लिख पर जेतु क्वेश्चन एटा अछि खाली Latin and Greek दाले जदि खाली क्वेश्चन आस्तांदा जे व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स ना हां एक्सेप्ट जदि पढ़थांदा जे एक्सेप्ट Latin and Greek व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स वे टॉट Greek at Harrow लिखि थांदा सेठी कोन ना Latin and Greek and splendid things बहुत किसी शिखुते जदि खाली क्वेश्चन होता व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स वे टॉट लिखि पार थांतो भी सेथिरे तो जेतेबेले क्वेश्चन जहा आसीबो सेही अनुसार तुमे आंसर को लिखिबो हला. सेकंड क्वेश्चन व्हिच स्टूडेंट्स वे टॉट ओनली इंग्लिश. व्हिच स्टूडेंट्स were taught only English. को स्टूडेंट्स माने इंग्लिश सिखुतले ना स्लो लर्नर्स ला आंसर एटी देखो देइछि we were considered such dances that we could learn on English. So dances बदले सेठी खाली लिखा जिवो the slow learners were taught only English. The next question number 3. How does the writer rate English? How does the writer rate English as a subject as a subject and
Mr. Somerville and Mr. Somerville as a teacher. तो फर्स्ट से इंग्लिश को केमिति रेट देथिले जे से इंग्लिश को सब लोग कहते जे इंपोर्टेंट इंग्लिश को तो सेटा हमें लिखिबा आगो द राइटर आंसर the writer at English as a subject the writer rated English as a subject that it is the language which helps it is the language which helps to earn कहीं जानल ना लिखाई कौन ना जो मैंने लाटिन और मैथमेटिक्स शिखुले से मैंने पुणी आसते कॉमन इंग्लिश को टू अर्न देयर लिविंग तो सहीटा को लिखा कौन ना which helps one to learn which helps one to learn then second question अच्छी कौन जे and Mr. Somerville as a teacher से rated केमती देथिले Mr. Somerville को ना Mr. Somerville taught एटा तुम पैसेज रे अछि हला तो Mr. Somerville taught English as no one else has ever taught it. No one else has ever taught it. आउटे कौन अच्छी एथरे आउटे लाइन कौन अच्छी तो ये देखो लिखाई जे गोटे ये छाड़देव जे नॉट ओनली डिड वी लर्न इंग्लिश पर्सिंग थॉरोली बट वी आल्सो प्रैक्टिस कंटिन्यूअली इंग्लिश एनालिसिस एटा इंपोर्टेंट नुहे देन अच्छी मिस्टर समरवेल हैड ए सिस्टम ऑफ हिज ओन तो ये लिखा एंड ये मिस्टर समरवेल काटिकी एंड ही हैज ए सिस्टम ऑफ हिज ओन एंड he had a system of his own method of teaching. देखो How does the writer rate English as a subject and Mr. Somerville as a teacher? एटा क्वेश्चन थिला The writer rated English as a subject that एटी does अछि तो rates लिख दो बाटी The writer rates English as a subject that it is the language which
helps नले according to the writer एठी भी आगुटे टिके ऐड करि परिबा ला एठी according to the writer एटा द राइटर एट बदलले जदि आमे आउ टिके चेंज कर दबा कोन लिखिबा एठी ना according to the writer according to the writer English as a subject that it is the language which helps one to learn full stop Mr. Somerville taught English as no one else has ever taught it and he had a system of his own method of teaching. Clear hela be? The next question. Question number 4. What part of English grammar did he learn from Mr. Somerville? से को पार्ट टा इंग्लिश ग्रामर रे मिस्टर समरवेल टू सिखुथिले. Question number 4. What part of English grammar did he learn from Mr. Somerville? से को पार्टा ग्रामर रे सिखुथिले. तो फर्स्ट लिखिया कोन ना he learned answer he learned from Mr. Somerville that he could be able to find the कौन कौन ना जाओ तुम पैसेज को से कौन कौन करले find the subject verb object relative clauses conditional clause then conjunctive and disjunctive clauses. Disjunctive clauses easily. से कौन कौन एठी देइछि जे खाली इंग्लिश ग्रामर कथा जदी खाली देई थांदा जे व्हाट अगर देख दियो एटा जे व्हाट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर डिड ही लर्न फ्रॉम मिस्टर समरवेल से इंग्लिश ग्रामर रे कौन कौन सिखुतले मिस्टर समरवेल टू ही लर्न फ्रॉम मिस्टर समरवेल दैट ही कुड बी एबल टू नले ही लर्नड इंग्लिश ग्रामर फ्रॉम मिस्टर समरवेल दैट ही लर्नड
English grammar from Mr. Somerville that he could be able to find the subject, verb, object, relative clause and conditional clause, conjunctive and disjunctive clauses easily. जदि ये क्वेश्चन आस्ता खाली जे व्हाट पार्ट ऑफ इंग्लिश डिड ही लर्न फ्रॉम मिस्टर समरवेल सेठी तुम कौन लिखता खाली टिके चेंज कर देता ही लर्न नॉट ओनली इंग्लिश ग्रामर फ्रॉम द मिस्टर समरवेल लाइक रिलेटिव क्लॉज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बट ही आल्सो एटा जोटा he also practice जोटा सब दिन से प्रैक्टिस करले he also practice continually English analysis जदि कहि देला जे खाली इंग्लिश ग्रामर देन एतिकी जदि खाली कहिला जे व्हाट पार्ट ऑफ इंग्लिश डिड ही लर्न देन दीटा जाक लिखिबो जोटा कि एटा प्रैक्टिस पई जोटा लिखाई छी आ जोटा ए जो ग्रामर पार्ट लिखाई छी क्लियर देन क्वेश्चन नंबर 5 Question number 5. How did he score over the clever schoolfellows in after years? In after yes से कौन पाइले जे ही स्कोर ओवर द आफ्टर स्कूल माने ताको स्कूल फेलोज टारु से कौन स्कोर करथिले अधिका जोटा कि से इंग्लिश शिखि दिले आ समस्त इंग्लिश शिखि नथले तो पैसेज को जाओ तुम जो देइछि जे इन आफ्टर इयर्स आंसर in after years his schoolfellows who had won prizes and distinctions distinction for writing कौन एपिग्राम्स जोड़ा राइटिंग लैटिन पोएट्री and brief epigrams एटी पिथे भी लिख परिबो हला brief epigrams had to come down to common English मने अछि कि नाही जे से साधारण इंग्लिश को आसुले तांकर अर्न करिया पई हला to come down to common English to earn their living or make their way और ए जो लिखा है टू मेक देयर वे ता बदले भी तुम लिख परिबो टू मेक सक्सेसफुल लाइफ ना टू मेक देयर
वे ताकर वे करिया पई से कॉमन इंग्लिश को फेरी थिले देन क्वेश्चन अछि जे हाउ जोटा क्वेश्चन अछि कोन ना हाउ डिड ही स्कोर ओवर द क्लेवर बॉयज तो इठा में ऐड कर दबा जे हियर he had scored over here he had scored over his school fellows as he had learnt English as the final answer कौन how did he score over the clever school fellows in after years से केमिति कौन स्कोर ओवर करथिले ना इन आफ्टर इयर्स हिज स्कूल फेलोज हु हैड ओन प्राइजेस एंड डिस्टिंक्शन जे कि डिस्टिंक्शन पाइथिले तांको स्कूल रे जोटा हला हु हैड ओन प्राइजेस एंड डिस्टिंक्शन फॉर राइटिंग लैटिन पोएट्री एंड ब्रीफ एपिग्राम्स हैड टू कम डाउन टू कॉमन इंग्लिश टू earn their living or make their way. Here he had scored over his school fellows as he had learnt English in school. तो से स्कोर कौन करथिले ना से जो जतल स्कूल ले से इंग्लिश शिखिथिले अन्य माने जतबेले कॉमन इंग्लिश को फेरले तांकर अर्न करिया पई सेतबेले से ऑलरेडी स्कूल ले शिखिथिले तो सेति मेटा से हाई माने तांको से स्कोर करथिले अधिका काहे कि ना से इंग्लिश जानिथिले क्लियर द नेक्स्ट क्वेश्चन Last question. Why was he biased in favor of boys learning English language? से कहीं की biased थिले. Question number 6. Why was he biased in favor of boys learning English language से कहीं की biased थिले. First answer he was biased in favor of boys learning English language as he would make them all learn English then तो एटा अच्छी देखो लास्ट जोटा पैसेज टा then he would let the clever ones
wants to learn Latin as an honor and Greek as a treat. As a treat. And also he would whip them for would be not knowing English. Why was he biased in favor of boys learning English language? He was biased in favor of boys learning English language as or because? Because he would make them all learn English, then he would let the clever ones to learn Latin as an honor and Greek as a treat. कौन पाई से सम्मान पाई लाटिन पढ़िया को कहते खुशी पाई ग्रीक पढ़िया को कहते बट से सब बड़े कहते जे all should learn English and also he would whip them for would be not knowing English. सब बड़े समान को कौन दंड होते बा चाबुक मारला भलिया मारते जे समस्ते न जान माने न जानिया पाई इंग्लिश को. क्लियर नाम सरी गला यूनिट 1 रो क्वेश्चन आंसर. तो नेक्स्ट क्लास रे यूनिट 2 सॉरी यूनिट 2 रो हमर क्वेश्चन आंसर सरला. एटा यूनिट 2 यूनिट 2 रो क्वेश्चन आंसर सरला. देन नेक्स्ट क्लास रे हमें यूनिट 3 क्वेश्चन आंसर करबा. तो सॉरी यूनिट 3 टा पढ़ेबा. तो यूनिट 3 स्टार्ट आज टिके जस्ट खाली कहि दउ छ वार्म अप रे यूनिट 3 टा कोन थिला. तो सेटा तो तार सब एटा कोनोसी यूनिट सहित कोटा रिलेटेड नो गोटे गोटे स्टोरी तांकर सब करा हिची. हला फर्स्ट अछि यूनिट 3 रे कोन ना आर स्टूडेंट एट स्कूल फन लविंग. सब बेले जे स्कूल लो पिला माने फन लविंग नुहंती की. डू यंग स्टूडेंट्स प्ले प्रैंक्स विथ देयर फेलोज. समस्त तांकर स्कूल फेलोज माने स्कूल सांग मान को सहित मजाक करंती कि नै. प्रैंक्स माने कोन जोक्स करबा मजाक करबा हसेया पई. तो प्ले प्रैंक्स विथ देयर स्कूल फेलोज समस्त करंती. Read the following unit of the text and note how the writer describes a funny incident he was involved with at school. तो सी ए जो यूनिट है यूनिट 3 रे तांकर जो प्रैंक से करछंती केमिति तांकर जो एक्सपीरियंस टा से जो स्कूल पिला मान को सहित तांकर केमिति फनी इंसिडेंट को से डिस्क्राइब करछंती. नेक्स्ट क्लास रे हम यूनिट 3 रे कंटिन्यू करे कने बड़ एटा यूनिट टा अछि सरीबनी हला. थैंक यू.